السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے اور استقبال ہے اور مبارکباد ہے، تہہ دل سے مبارکباد ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں یہ نعت پڑھ رہے ہیں، نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام نبوت عام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام نبوت عام کرو۔ بہت ہی بہترین انداز میں یہ نعت پیش کر رہے ہیں، یہ شعر پیش کر رہے ہیں بہت اچھے انداز میں۔ اور یہ ان کے بعد یہ حضرت مولانا مفتی ظاہر حسین صاحب بھی آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہے ہیں، بہت ہی بہترین انداز میں یہ آپ لوگوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ باغور اس کو سنیں اور ان کے باتوں پر عمل کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ ملو پیغام نبوت عام کرو، اے کاش کہیں آقا آ کر، اے کاش کہیں آقا آ کر خواب میں یہ نہ فرما دے، یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں، جنت میں چلو آرام کرو، دیوانو اٹھو ایک کام کرو، یہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام نبوت عام کرو۔ کتنا حسین موسم، کتنا حسین موسم، کتنا پیارا منظر، کتنا پیارا منظر، کتنا پیارا منظر، اور نور کی ہے بوچھار، دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار۔ کتنا حسین موسم، کتنا پیارا منظر، کتنا پیارا منظر، اور نور کی ہے بوچھار، دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار، کہ ہے وہ شہر نبی، ہے وہ کتنا حسین، ہے وہ شہر نبی، ہے وہ کتنا حسین، دیواروں در اور ان کی زمین، جو بھی اسے دیکھ کے آئے کچھ نہ بھائے، روزے کی سنہری جال، روزے کی سنہری جال، ہے جالی کتنی نرالی، اس پیاری پیاری جالی میں، اس پیاری پیاری جالی میں، اس پیاری پیاری جالی میں رہتے ہیں سرکار، دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار، کہ ایک روز وہاں میں بھی جاؤں گا، کہ ایک روز وہاں ہم سب جائیں گے، ایک روز وہاں میں بھی جاؤں گا، قسمت اپنی چمکاؤں گا، اے باد صبا تو ادب سے چل، اترا کے نہ چلے اور نہیں مچل، اے باد صبا تو ادب سے چل، اترا کے نہ چلے اور نہیں مچل، شہروں میں سب سے اعلیٰ طیبہ نگر ہے نرالا، شہروں میں سب سے اعلیٰ طیبہ نگر ہے نرالا، طیبہ نگر یا رب دیکھوں میں 100 بار، دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار، کتنا حسین موسم، کتنا پیارا منظر، کتنا پیارا منظر، اور نور کی ہے بوچھار، دکھلا دے ہمیں اے مولا آقا کا حسین دربار۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين،
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलाति बअद सलाह फ़ज़ालिका रिबात फ़ज़ालिका रिबात फ़ज़ालिका रिबात। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हज़रात के सामने इस वक्त जो है तकरीर नहीं होगी, बस एक छोटा सा मुज़ाकरा होगा कि हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कदर सलाहियतें रखी है, जितने इस्तेदाद है और जितना हुनर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है और जितनी चालाकी और चुस्ती इंसानों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, आया वो उन तमाम सलाहियतों और खूबियों को बदर्जे आतम इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इंसान बनाया है, होने के नाते हमें एक बात समझनी है, वो ये समझनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है और दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह तबारक व तआला का ये है कि हम नेकी करें और दुनिया में रह कर के हम जो भी छोटी और बड़ी नेकी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर हमें अता फरमाएंगे। और यह बात शुरू से लेकर के आखिर तक इंशाअल्लाह चलती रहेगी, अभी भी चलती रही है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। मुहसिनीन कहते हैं कि हर वो आदमी जो नेकी करे दुनिया में रह कर, नेकी में चाहे वो आदमी सदका करे, नेकी में चाहे आदमी खैरात करे, आदमी किसी को एक घोंट पानी पिलाए, किसी को एक वक्त का खाना खिलाए या किसी का हाथ पकड़कर मुसीबत से उठा करके उसको रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे, किसी भी तरीके से वो आदमी नेकी करेगा वो मुहसिनीन में शामिल होगा। और जब वो मुहसिन हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर में उस आदमी का नाम लिखा जा चुका होगा, इस आदमी ने फला तारीख को फला आदमी के साथ नेकी की है, तो लिहाजा इसका उसको बदला दुनिया में जिस तरीके से उसने किया है आखिरत में मिलना चाहिए। इस वक्त हम लोग जो इस मजलिस में बैठे हैं ये भी एक नेकी है। मजलिस जमाने वाले ने इस मजलिस को जमा किया है। इस मजलिस में जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, इस मजलिस में शिरकत की वजह से अल्लाह ताला उसको भी बदला अता फरमाएंगे और ख़ास तौर पर जो लोग इस मजलिस को मुनाकिद करने में आगे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इसका बदला अता फरमाएंगे। लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नेकी करने के लिए भेजा तो सही है कि हम किसी की मदद करें, दुनिया में रह करके इंसान होने के नाते जो है इंसानियत के फरीज़े को अदा करें, लेकिन सबसे बड़ी नेकी जो सबसे बड़ा फरीज़ा है वो ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए सबसे मोहतम बिशान इबादत को अदा करें। वो इबादत है इबादत सलाह, यानी कि नमाज की इबादत। हम सही हैं कि हम किसी की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उसका अजर हमें अता फरमाए। हम इस वक्त दीन के मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं, उसके फरिश्ते लिख रहे हैं, एक न एक दिन इस दीनी बातों के सुनने का सवाब हमको मिलेगा। हम किसी की मदद करते हैं उसका सवाब मुझे मिलेगा, हम कुरान की तिलावत करते हैं उसका सवाब मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये भी पूछेंगे कि बताइए इन तमाम कामों में आप तो आगे रहे, लेकिन क्या आपने एक वक्त की नमाज भी पढ़ी? आपसे नमाज छूटी कि नहीं छूटी है? आपने नमाज में कितना दिल लगाया? आपने नमाज को किस अंदाज से अदा किया है? अगर हम वहाँ पर तमाम नेकियों में पास हो जाए और नमाज अगर हमारे सामने आ जाए और वो हायल हो जाए तो तमाम नेकियां मेरे दोस्तों अकारत है। तमाम नेकियां क्या है? अकारत है।
तो जब अल्लाह तबारक व ताला का सबसे बड़ा फरीज़ा जिसको नमाज कहते हैं अगर हम उसी में फंस जाए तो मेरे दोस्तों फिर हमें अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कि हम दीगर इबादतें करते हैं उसका सवाब हमको मिलेगा, सही बात है। वो कभी कभी वो इबादतें करने का इत्तेफाक होता है, लेकिन सबसे बड़ी इबादत जो नमाज है हम उसमें कोताही कर रहे हैं। इस वक्त जो हमने आप हज़रात के सामने हदीस पेश की है वो हदीस बहुत ज़्यादा मुहतरम बिशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ क्या मैं तुम लोगों को एक ऐसा अमल बताऊं, वो अमल ऐसा मुहतरम बिशान अमल है कि अगर आदमी उसको कर ले तो उसके करने की वजह से उसके तमाम गुनाह मिट जाए, उसके तमाम गुनाह मिट जाए और उसके बराबर उसकी नेकी भी लिखी जाए। तो सहाबा जो है कहे कि क्या अल्लाह के रसूल इससे ज़्यादा बेहतर और क्या बात हो सकती है कि जिसके करने की वजह से हमें नेकियां मिल जाए और हमारे सारे गुनाह मिट जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहली बात वो ये है कि इसबागुल वुज़ू अल मकारिह, कि आदमी वुज़ू को बेहतरीन अंदाज से करे, और वो भी कब, जबकि उसको कराहत का सामना करे, जब उसको परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसी हालत में आदमी अगर बेहतरीन अंदाज में, शानदार अंदाज में वुज़ू करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जाहिर बात है कि अगर गर्मी का मौसम है उस वक्त तो आदमी चाहता है कि मेरा चेहरा भीगा रहे, मेरे हाथ पैर भीगे, उसको तो मज़ा आता है। लेकिन ये हदीस इसी वक्त के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई है कि ठंडी का मौसम हो, सख्त सर्दी का मौसम हो, ऐसे वक्त में हमारा बंदा उठे और सिर्फ मेरी खातिर वुज़ू करके कि हम अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए वुज़ू कर रहे हैं और वुज़ू करने के बाद जाकर के मस्जिद में नमाज़ पढ़। अगर ऐसी हालत में आदमी वुज़ू करता है और अल्लाह तबारक व ताला ही के लिए वुज़ू करता है, किसी बंदे को दिखाना मकसूद नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि ऐसे बंदे के जितने गुनाह है उसको मिटा दिए जाएंगे और उसके बदले में उसके अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। बहुत बड़ी फजीलत की बात है मेरे दोस्तों। और दूसरा आदमी कौन है, कहते वो कसरतुल खुदा इलल मसाजिद, और वो आदमी जो बकसरत मस्जिद में आया जाया करता है। हम बाज़ार तो जाते हैं, हम दोस्तों से मिलने तो जाते हैं, उसकी फजीलत नहीं है। हम बाज़ार जाते हैं, उसकी फजीलत नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी अपने घर से चलता है और चल करके मस्जिद की तरफ जाता है, फरमाते हैं कि वो हर कदम पर जो वो चल रहा है उसको हर कदम पर एक एक नीक उसके नाम अमाल में लिखी जाएगी। अगर आदमी मस्जिद में चला गया और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को खुशखबरी सुना दो, उसके नाम अमाल में अल्लाह तबारक व तआला नेकियां लिखते हैं और उसके गुनाह मिटा देते हैं। और तीसरा आदमी जो बहुत कम आजकल के ज़माने में है, बल्कि बिल्कुल कल आदम ही है, ऐसा आदमी आजकल देखने को नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वंतिज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, एक आदमी नमाज़ पढ़ता है असर की और वो इस इंतज़ार में है कि मगरिब की नमाज़ का वक्त कब आए, और मगरिब की जब पढ़ लेता है उसके दिल के अंदर बेचैनी है कि वो इशा की नमाज़ का वक्त कब आए। हर नमाज के पढ़ने के बाद फ़ौरन उसको दूसरी नमाज की तलब रहती है, चाहत रहती है, मोहब्बत रहती है। नमाज से इतनी लगन और शगफ और मोहब्बत है, ऐसा लगता है कि नमाज उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर बिल्कुल रच और बस गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको भी खुशखबरी सुना दो कि वो आदमी ऐसा है कि अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दें। लेकिन इस वक्त हम जो है अपने अमाल को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, दोनों के दरमियान मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ज़िद है। हम एक तरफ है, हमारे अमाल बहुत ज़्यादा प्रिय हो चुके हैं। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे जो नेक अमाल से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम नमाज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे दिगर अमाल जो है हमसे नहीं अदा हो पा रहे। ये बात बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस है। हम मुसलमान कहलाने के लायक मेरे दोस्त तो नहीं हैं। अगर हम सारे अमाल करते हैं अल्लाह के नबी को खुश करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए मजलिसें भी जमा रहे हैं, ये भी सवाब का काम है। कुरान खानी भी हो रही है, दिगर जलसे जुलूस में आना जाना हो रहा है,
हम गर्मी के सर्दी के मौसम में कंबल भी बांट रहे हैं, गरीबों के मजदूरों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सही दिन माने पर देखा जाए, अगर उसके साथ साथ अगर हमारा ये भी अमल अदा हो जाए तो क्या सोने पे सुहागा हो जाए। हम अल्लाह के नबी की जब ज़िंदगी को पढ़ेंगे, हम अपने सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, ताबईन के, बल्कि हम अपने आबा और अजदाद के अमाल को देखिए ना उठा करके, उन्होंने किस तरीके से अल्लाह के नबी से मोहब्बत की कि वो लोग तहज्जुद के लिए जग जाया करते थे। तो पता चला कि तहज्जुद की नमाज में जग करके वो लोग चाय पी करके तब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आ रहे हैं। कितनी उनको दीन की शगफ और मोहब्बत है कि सिर्फ इसलिए कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया में की ज़िंदगी चंद दिनों की ज़िंदगी है, यहाँ पर कितने दिन का आदमी के लिए क़याम है। आज हमारे लिए उरूज है, कल ज़वाल हो जाएगा और परसों होकर के ऐसा ज़वाल आ जाएगा कि मरो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन पूछने वालों को वही होता है जो लोग दुनिया में रह करके कार खैर करके गए हैं, दुनिया में कुछ छोड़ करके गए हैं। उनके बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो लोग दुनिया में अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, क्या रखते हैं? ज़िंदा रखते हैं। कैसे? अभी बताएंगे। दो लोग अपने आप को दुनिया में ज़िंदा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी उसको दुनिया में ज़िंदा रखते हैं। वो लोग मरते नहीं हैं। वो किस तरीके से? का तो दुनिया में ज़िंदा रहने का मतलब ये है कि आदमी खुद भी नेकी पर अमल करे और नेकी पर दूसरों को अमल करने की तरगीब दे, और उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला जो है बहुत सारा काम ले, और वो उसके बरकत से मोहल्ले के लोग, पास पड़ोस के लोग, आसपास के लोग, घर के मर्द औरतें सारे के सारे लोग नमाजी हो जाए, नमाजी उसको तबलीग हो, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मरने के बाद भी उसको ज़िंदा। फला आदमी था फला मोहल्ले में, बड़ा नेक था, उसकी वजह से मैंने नमाज़ पकड़ी थी, आज तक मेरा नमाज नहीं छूटी। फला आदमी था हमारे मोहल्ले में, हज करने के लिए गया था, उसी की वजह से मैं भी हज करने के लिए चला गया था। फला आदमी मेरे मोहल्ले में था भाई, वो आदमी बहुत ज़्यादा खैर खा था, लोगों को दान खैरात करता था, उसी से मैंने सीखी थी। जब आदमी एक नेकी करके दुनिया में जाता है और उसके बदले में जब दूसरा आदमी नेकी करता है, तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि जितनी नेकी वो आदमी करता है उसी के बराबर उस नेकी करने वाले जिसने उसको बताया था उसको भी सवाब मिलता है। मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल अलैहा, कि जब आदमी एक खैर खाही का अमल दुनिया में ज़िंदा करके दुनिया से चला जाता है, तो जितने आदमी उस पर अमल करता है, हर उस आदमी के अमाल के बराबर उस आदमी को जो मर गया है बता करके उसको भी अल्लाह ताला सवाब देता है। बताओ, जब आदमी इसी तरीके से अमल करता चला जाएगा और न जाने कब तक चला जाएगा, तो सोचिए कि आदमी के नाम अमाल में कितना नेकी सोचने की बात है। आज हम बुराई को ईजाद करना चाहते हैं, बुराई को जो है फैलाना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी एक बुराई को ईजाद करता है तो उसकी वजह से जितने लोग उसमें मुलव्विस होंगे तो हर आदमी का वबाल उसके ऊपर चला जाएगा, जितने लोग उस वबाल पर अमल करते हैं। एक तरफ नेकी है तो दूसरी तरफ वबाल भी है। इसीलिए मेरे दोस्त अपने आप को उस वबाल से बचाएं और अपने आप को नेकी पर डालने की कोशिश करें। और मैं हाथ जोड़कर आप हज़रात से कहता हूँ कि आप हज़रात जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हमसे और अमाल हो ना हो, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अगर ना पढ़े, अगर आदमी नमाज से दूर हो तो हमारे और कुफ्र के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं है। आदमी फ़ौरन नमाज छोड़ने की वजह से कुफ्र के करीब हो जाता है। बहुत डरने की बात है, बहुत समझने की बात है। जितने लोग बैठे सब के सब समझदार हैं, हर आदमी अपने अच्छाई और बुराई को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेकी अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और ख़ास तौर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मालेना